Welcome back, students. I'm back again with another lecture regarding cell organelles, and today our topic of discussion is mitochondria. Mitochondria. As you have studied in your earlier classes, that mitochondria is a very important cell organelle in eukaryotic cells, and it is also known as the energy house of the cell, or you can also call it as powerhouse of the cell. एनर्जी और पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कह सकते हैं. इट्स आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम. कॉन्ड्रियोसोम भी इसको कहा जा सकता है. एंड इट्स आल्सो नोन एज द व्हाट वी कॉल एज द एंजाइम पैकेट ऑफ द सेल. एंजाइम पैकेट ऑफ द सेल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सेल के 70% जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. 70% ऑफ द सेलुलर एंजाइम्स आर लोकलाइज्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज द एंजाइम पैकेट ऑफ द सेल. और भी कई नाम हैं इसके. फॉर एग्जांपल इसको एटीपी मिल ऑफ द सेल भी कहा जा सकता है. एटीपी मिल ऑफ द सेल. आप इसको एटीपी मिल ऑफ द सेल भी कह सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट अल्टरनेटिव नेम्स फॉर द सेम सेल ऑर्गेनल, दैट इज द mitochondria. Now, these are different names for the same cell organelle. Now, after that, we will see about the discovery. This cell organelle was first of all discovered by a scientist known as Kolliker. So, Kolliker discovered mitochondria. Kolliker ने discover किया था mitochondria, and then Altman gave the term bioplasts. Altman gave the term bioplasts for mitochondria. Mitochondria के लिए Altman ने एक term दी थी bioplasts. Okay, then this term, that's mitochondria was given by Benda. Term mitochondria was given by Benda. So this is a general information regarding the discovery. So this person known as Kolliker, he discovered the mitochondria. Unless and until the mitochondria are deeply standard, you cannot see the detailed structure of the mitochondria inside the microscope. So Altman gave the term bioplasts for the mitochondria. Altman ने bioplast term दी थी mitochondria के लिए. और इसके बाद the term mitochondria, जो mitochondria आज के दौर में जो popular term है mitochondria, this was given by the Banda. So this is a brief what we call as history of the discovery of this very cell organelle which we call as the mitochondria. So ये mitochondria के बारे में एक general जो है discovery कैसे हुई थी, किसने डिस्कवर किया था, इसके बारे में ये बात चल रही थी. Now after that, let's move towards the structure. अब स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे हम. What's the structure of the mitochondria? So it's now the structure of the mitochondria. Now with respect to the structure, I will draw a diagram of the mitochondria over here. This mitochondria has an outer membrane known as the outer mitochondrial membrane. This is the outer mitochondrial membrane. Got it? And then this is the inner mitochondrial membrane. So you should make it clear in your mind that the mitochondria is lined by two membranes. That's outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane. Now these two membranes divide the mitochondria into two different compartments. ये जो space है between the outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane, this is known as the outer chamber. It is the outer chamber.
and this very chamber solely enclosed by the inner mitochondrial membrane, it is known as the inner chamber. तो दो चैम्बर्स बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, दो चैम्बर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो ये चैम्बर है, इसको आउटर चैम्बर कहा जा सकता है। और ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ने जो एनक्लोज की है ये स्पेस, इसको इनर चैम्बर हम कहते हैं। इसमें एक फ्लूइड मास होती है इस इनर चैम्बर में, जिसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। वी कॉल दैट एज द मैट्रिक्स। ओके, what is inside the matrix, we shall be later on understanding that also कि मैट्रिक्स के अंदर क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर दैट हम बात करेंगे इन दो मेम्ब्रेन्स के बारे में। देयर इज डिफरेंस इन द परमेबिलिटी ऑफ दीज टू मेम्ब्रेन्स, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट ओवर हियर। इनकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में थोड़ा फर्क है। हम यहाँ पे स्पेसिफिक 11th क्लास के लिए लेक्चर बना रहे हैं, सो वी आर कीपिंग द लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द 11th क्लास स्टूडेंट्स। अदरवाइज डिफरेंस है इन द परमेबिलिटी ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो इससे पहले कि हम और आगे जाएं, मैं आपको बता दूं कि देयर इज डिफरेंस इन द सरफेस एरिया ऑफ द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसका सरफेस एरिया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ज़्यादा है। आप देखिए, क्योंकि इसमें कुछ फोल्ड्स हैं और इन फोल्ड्स को क्रिस्टा कहा जाता है। वी कॉल दीज वेरी फोल्ड्स एज द क्रिस्टा। दीज वेरी फोल्ड्स आर नोन एज द these very folds are known as the crista. The plural term for crista is cristae. So these crista increase the surface area of the inner mitochondrial membrane. And after that, you will see inside the inner mitochondrial membrane there is mitochondrial DNA, which you simply write down as mtDNA. That's mitochondrial DNA. I need to mention over here that this mitochondrial DNA is single circular double strand, single circular डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये सिंगल सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, और इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। फर्दरमोर देयर आर फाउंड मेनी आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो इनसाइड दिस मैट्रिक्स। दीज आर द आरएनए मॉलिक्यूल्स। So besides DNA, RNA molecules are also found in the matrix of the mitochondria, and you will also find some ribosomes over here. The ribosomes are essentially of the 70S type ribosomes. So ribosomes are also found over here, and these ribosomes are of 70S type. अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान रखा होगा जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन चल रही थी, I have repeated that in eukaryotic cells there are 80 S type of ribosomes, but inside the mitochondria, which are components of the eukaryotic cells, mitochondria तो eukaryotic cell में ही होता है, लेकिन mitochondria के अंदर जो eukaryotic cell में ribosome होता है, that's of 70S type. Okay, so and there are all other materials also present in the matrix which are needed for protein synthesis. So ये जो mitochondria है, mitochondria protein synthesis करवाता है। जिस तरीके से न्यूक्लियस से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सॉरी, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। लेकिन जो सारे प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, वो सारे प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद नहीं बना सकता है। दैट इज व्हाई वी से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फुली ऑटोनॉमस। कुछ जो इसको प्रोटीन्स चाहिए वो खुद बना सकता है, लेकिन और प्रोटीन्स जो इसको चाहिए वो न्यूक्लियस के डीएनए के जरिए बन जाते हैं। उसी में न्यूक्लियर डीएनए में उसकी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो इसको प्रोटीन चाहिए उसके लिए इसकी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सेल ऑर्गेनल आल्सो एज द सेमी ऑटोनॉमस। क्योंकि ऑटोनॉमस है लेकिन ये फुली ऑटोनॉमस नहीं है, ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि इसमें जो डीएनए है, इसमें वो उस हिस्से का डीएनए है कि ये कुछ अपने प्रोटीन्स बना सकता है लेकिन सारे नहीं बना सकता है। सो इट्स नॉट फुली ऑटोनॉमस, इट इज what we call as semi-autonomous cell organelle. This is the unique feature of mitochondria, that it is semi-autonomous. इससे आगे हम चलते हैं थोड़ा। When we move ahead, you see, यहाँ पे आप देखेंगे the inner mitochondrial membrane has certain particles attached with it. इसके साथ कुछ particles attach किए होते हैं inner mitochondrial membrane के साथ, and these very particles are called as the oxysomes. इन particles को oxysomes कहा जाता है। In the entire mitochondrial membrane there are present molecules which we call as the oxysomes. इन molecules को हम कहते हैं oxysomes, और इन्हीं oxysomes को हम FO
FI particles भी कहते हैं. We call these molecules also as FOFI particles. और इन्हीं particles को आप कभी कभार Raker's particles भी कह सकते हैं. You can also call them as Raker's particles. You can also call them as elementary particles. इनको elementary particles भी आप कह सकते हैं. And you can also call them as Fernandez-Morin particles. Fernandez-Morin particles. So ये एक ही पार्टिकल के बहुत सारे नाम है. ये जो यहाँ पे आप पार्टिकल देख रहे हैं, this is known as oxisome or FOFI particle, or it's also known as Raker's particle. It's also known as elementary particle or Fernandez-Morin particle. With respect to the structure of this molecule, this is the base piece. This is the base piece of this molecule. ये इस molecule का base piece है, जिसको आप FO particle भी कह सकते हैं. This is stalk. ये स्टॉक है इसका. और दिस इज हेड पीस. ये इसका हेड पीस है. और इस हेड पीस को FI पार्टिकल भी कहा जा सकता है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज FO पार्टिकल और FOFI पार्टिकल. तो इसके तीन हिस्से होते हैं ऑक्सोम के और एलिमेंट्री पार्टिकल के. ये होता है बेस पीस, ये होता है स्टॉक इसका, और ये होता है हेड पीस. इज इट ओके? और ये जो ऑक्सीजोम है, इसका जो हेड पीस है, इसी में ATP बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन. बाय फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस इसी में ATP बनता है. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है बेटा? तो यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जा सकता है. So the shape and the number of mitochondria inside the cell is variable. Shape can be cylindrical, it can be variously shaped. The mitochondria are variously shaped, so that's why we say they show pleomorphism with respect to their shape. And इनका साइज जो है, साइज भी वेरिएबल है. और एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. सेल कितनी एक्टिव है, उसमें एनर्जी का कितना खर्चा है, उसी लिहाज से उसमें होंगे माइटोकॉन्ड्रिया. तो अब फंक्शंस पे आते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? फर्स्ट थिंग इज दैट ATP फॉर्मेशन. ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जो एनर्जी आपको खर्च होती है सेल में, वो ATP की सूरत, ATP मॉलिक्यूल्स की सूरत में बनती है. तो वो ATP इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, इसी FOFI पार्टिकल में बनता है. ATP फॉर्मेशन बाय क्रिब साइकिल. एक तरीके का सेट ऑफ रिएक्शंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको आप कहते हैं क्रिब साइकिल. और यू कैन आल्सो कॉल क्रिब साइकिल इज द ATP साइकिल. और वो ATP साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके जरिए ATP बनता है. तो ATP फॉर्मेशन इसका एक अहम जो है काम है. इसके बाद है, इट इज द सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल्स में इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन का खर्चा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. आपको पता है ग्लूकोज के साथ C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनाता है. तो ये रिएक्शन जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है. इज इट ओके? सो ATP फॉर्मेशन by Krebs cycle occurs in the mitochondria. It is the seat of the aerobic respiration, and many other activities are also carried out by the mitochondria. और भी बहुत सारे काम हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के हैं. ये अहम काम है माइटोकॉन्ड्रिया के. And after that you need to remember the last point that mitochondria divide by fission. माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवीजन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं by फिशन प्रोसेस डिवाइड करते हैं. जिस तरीके से कुछ बैक्टीरिया में फिशन होता है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिशन होता है, उसी तरीके से इनमें भी फिशन होता है. सो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. आई विल अगेन रिपीट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का लेक्चर है, इट इज स्पेसिफिकली एज पर द 11th क्लास स्टैंडर्ड, एंड द लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एज पर द 11th क्लास स्टैंडर्ड. तो 11th class standard के लिए है, and keeping in view the NCERT pattern of your text and references, this is the sufficient information for your board examination.